ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਪਾਰਟ 3, ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਪਾਰਟ ਦੇ 3 ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਓਨਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚੇ 10, 100, 1000 ਔਰ 10000 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੀਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 10, 100, 1000 ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਹੈ 34/5। ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਅਗਰ 10, 100, 1000, 10000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ 10 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 68, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10। ਹੁਣ ਇਹ ਆਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਚੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ 1 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਲਗਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਟ ਕੀ 25 ਦਾ ਟੇਬਲ 'ਚ 100 ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ 4 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 8 ਚੌਕਾ 32, ਯਾਨੀ ਕਿ 192 ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 100। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ 2 ਅੰਕ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1.92। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਕਮ ਲੈਣਾ 37/6। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10, 100, 1000 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ 37 ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ 6 ਨਾਲ, ਤਾਂ 37 ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, 6 ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਛਿਕਮ 36। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਚ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਉਤਾਰ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਉਤਾਰ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ 0 ਉਤਾਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 10, 6 ਕਮ 6 ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 0 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ 1 ਉਤਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ 1 ਹੋਰ 0 ਉਤਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਾਰੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਪੂਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1-2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਛਿਕਾ 36। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰੋਂ 0 ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ 36, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6.166, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ,
ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 34 ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ 5 ਛਿਕਾ 30 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਿਆ 4। ਹੁਣ क्योंकि ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ ਜੋ कि 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇੱਕ कैरी करांगे, मतलब ले लांगे आप तो इतने दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 5 40 5 8 के पहाड़े थे 5 8 40 जी। तो देखो साढ़े को रिमाइंडर 0 रह गया, बाकी 0 रह गया और ऊपर आंसर भी देखो। ठीक है, तो इस तरीके आप डिवीज़न कर सकते हैं। मान लो और भी कोई किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है जो डिवीज़न मैथड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ने और आम करके आप देखते हैं कि जिन्हों के नीचे 3 लग्या होवे 6 लग्या होवे है ना, वो कंटीन्यूसली चली जाती है। देखो रिपीट होंगे ने। तुसीं अगर आप आ चीज़ है फॉर एग्जांपल इसनों डिवाइड तो इसनों जो तुसीं डिवाइड करोगे, देखो 3 3 9 बच गया एक। देखो ऊपर हूँ कैरी करना पऊगा पर है नहीं, तो इतने पॉइंट अपने 0 एक उतार लिया, फिर 3 3 9, फिर इसी तरीके ना फिर चलता रहूगा। देखो है ना, तो कंटीन्यूसली चली जाता। तो आप इतने की लिख दें इस तरीके ना, चाहे तो तुम आए लिख लो चाहे तुम आ पा लो। ठीक है, यदा मतलब होंगे ये कंटीन्यूसली चली जाता है। ठीक है, तो बेटा अगे आप मैं थोड़ा समझाना। देखो मैं टॉपिक लिखा होया हैगा दशमलव का ही अगे टॉपिक है। तो समान दशमलव तो असमान दशमलव कई बार आपू किसी टैसट के जरूर पूछ लेंगे हैं कि समान दशमलव किहड़े होंदे ने। देखो मैं थोड़े सामने एक एग्जाम्पल दिना 1.16, ठीक है 2.37, 6.48, 7.32। तो जेकर इन्हां दे विच दशमलव तो बाद मतलब दशमलव स्थानां की गिनती, देखो दशमलव तो बाद 2 दशमलव स्थान ने, फिर 2 ने, दशमलव तो बाद फिर 2 ने, फिर 2 ने, तो इन्हों आप समान दशमलव कहने हैं। ठीक है, दशमलव तो बाद जो दशमलव के स्थानों की गिनती हैगी है अगर वो इक्वल होंगी है तो अपने को वो बन जाएगा। हुण अगर आप इसे दी एक एग्जाम्पल लैनी हो, फॉर एग्जाम्पल तो देखो इस दे विच दशमलव स्थान ओनली एक है। ठीक है, तुसीं कन्फ्यूज ना होना। मान लो मैं इत्थे आए लिख देना, तो इस दे विच देखो दशमलव स्थान एक है ओनली सिंगल, इस दे विच देखो 2 हो गए, इस दे विच देखो 3 हो गए, ये तो कोई भी इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, इन्हों आपां की कहने हैं, अगर दशमलव स्थानों की गिनती इक्वल नहीं होंदी तो उसनों असमान दशमलव आपां कहने हैं। एक मैं तुहानूं चीज़ होर समझादा, वो कई स्टूडेंट दे विच बड़ी कन्फ्यूजन होंदी है। ठीक है, जो कंपैरिजन करते हैं, देखो मैं थोड़े सामने 3 दशमलव लिखे हुए हैं इस तरीके नाल। तो कई मैं स्टूडेंट को जरूर पूछता हूँ कि ये दसो कि इन्हां विचों वड्डा किहड़ा है, तो वो जवाब देंगे आई थिंक ये वाला, बट इन एक्चुअल दे विच सारे इक्वल ही ने। या ध्यान ना सुनियो, अगर दशमलव तो बाद जो अंक आउंदे ने अगर उन्हां दे राइट हैंड साइड ते सज्जे पासे भावें आपां जिन्नी मर्जी जीरो पा लीए उहदे नाल उस संख्या ते कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं तुहानूं एक इसदी उल्टी एग्जाम्पल दिना। देखो आ 2 है, बिल्कुल एक पूर्ण अंक है, बिल्कुल सीधा। अगर इस दे मैं खब्बे पासे 0 लगावां, 0 2 ये भी 2 ही हुंदा है, 0 0 2 ये भी 2 ही हुंदा है। ठीक है, 0 0 ये भी 2 होंगे। तो अगर आप किसी भी पूर्णांक, ठीक है साढ़े को पूरा एक होल नंबर ही है, उसके अगर आप लैफ्ट हैंड साइड ते खब्बे पासे अगर आप 0 लगाने तो देखो कोई फर्क नहीं पैंदा। पर अगर कोई साढ़े को अंक है दशमलव तो बाद जो भी अंक लास्ट दे विच रह गया, देखो अगर उसके सज्जे पासे यानी कि इधर पासे कोई तुसीं 0 लगाई जाते हो तो उस नाल भी उस अंक ते कोई फर्क नहीं पैंदा, ये सारे सेम होंदे ने। पर इस दे विच कन्फ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं अगर इस तरीके नाल लिखा जाए, ठीक है चलो मैं इत्थे इस तरीके नाल लिख दिना। हुण मान लो आ लिखा हो तो इन्हां दे विच बहुत फर्क है। ये नहीं कन्फ्यूज होना कि इस दे विच जी देखो
दो जीरो आ ने तो इन्हां 'ਚ कोई फर्क नहीं होगा। नहीं, इस तरीके नाल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपां कह रहे हैं कि एक दशमलव तो बाद जो भी अंक है, मतलब लास्ट दे विच जो भी अंक है सज्जे पासे, अगर उसके सज्जे पासे देखो आ खत्म हो गया, ठीक है। दशमलव तो बाद सब तो साडा कोले लास्ट अंक है, इसके अगर आप सज्जे पासे 0 पाईए तो उस नाल उस अंक ते कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। और इसी प्रकार साडे कोले अगर एक पूरा नंबर है, पूरे नंबर के खब्बे पासे अगर आप जीरोस पाने आ तां भी उसते कोई फर्क नहीं पैंदा। तो एक स्टूडेंट नाल समझना है कि अगर आपने कंपैरिजन करना होवे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डेसीमल का अगर आपने कंपैरिजन करना है कि केड़ा वड्डा है तो केड़ा छोटा है, मैं थोड़े सामने एक एग्जाम्पल दिना। फॉर एग्जाम्पल साडे कोले इस प्रकार की ये रकम है, ठीक है। चलो मैं थोनों इत्थे मैं पा लेना 9 पा लेना ताकि मैं समझाना बहुत आसान हो जाए। तो तुसी की करना है, जो भी चैक करना है कि साडे कोले केड़ा दशमलव वड्डा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं उत्थे होर लूँगा। तो इन्हां दे विचों केड़ा वड्डा है, तुसी की करना है, सब तो पहली गल जो साडे कोले दशमलव है उसके लैफ्ट हैंड साइड पे जो भी रकम है उसका कंपैरिजन करो। इत्थे देखो 9 है और इत्थे है साडे कोले 8। अगर दोनों इक्वल ने फिर तो अगे आप फिर चैक करांगे, वो मैं एग्जाम्पल तुहानूं दूंगा, ठीक है। दशमलव के खब्बे पासे तुसी अंक देखने ने, बस ये भी ध्यान रखना है कि मैं ये संख्या प्लस वाली है कि माइनस वाली है, ठीक है। इत्थे देखो 8 है प्लस का, इत्थे देखो दशमलव तो बाद मतलब पहला साडे कोले 9 है, तो बड़ा किहड़ा है, तो ओबवियसली साडे कोले आ रकम वड्डी है, तो असीं आ चिन्ह पा देंगे। गल समझ गए। हुण मान लो, क्योंकि मैं आ भी दसूँगा, साडे कोले आ रकम है, हुण दशमलव तो पहला इत्थे है साडे कोले 6 और दशमलव तो पहला इत्थे है 7, तो ओबवियसली आ वड्डा है, ठीक है। हुण इस दे विच जो दशमलव तो पहला कोई संख्या ही ना हो, या जिसनों देखो दशमलव तो पहला अगर मैं 0 भी पाता तो भी कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि कोई संख्या ही नहीं हैगी सी। हुण देखो इस मामले के विच अगर अपने चैक करना हो, दशमलव तो पहला 0 0 है बई सेम ने, फिर साडे कोले दशमलव आ गया, ठीक है जी। दशमलव तो तुरंत बाद साडे कोले इत्थे भी 3 है, इत्थे भी 3 है, ठीक है जी। दशमलव तो बाद इत्थे साडे कोले 6 है, इत्थे भी 6 है, ठीक है जी। हुण साडे कोले दशमलव तो सज्जे पासे अंक खत्म हो गए, ठीक है। आपां इत्थे भी बोलिया सी कि जो अंक खत्म हो जाए उस तो सज्जे पासे भावें 0 पाई चलो, कोई फर्क नहीं पैंदा। देखो अगर मैं इत्थे 0 पा भी देवां तो भी कोई फर्क नहीं पैंदा। तो इत्थे तो मान लो 0 है या कुछ भी नहीं सी, तो इत्थे 1 है, तो ओबवियसली वड्डी किहड़ी होई, जिहड़ी वड्डी हुंदी है उस दे साइड आ दोने चुंजां होणगीआं, यानी कि आ वाली वड्डी है इस तो। और अगर असीं आ लिखते हैं चिन्ह तो इसका मतलब आ वाली वड्डी है इस तो, ठीक है। आप फिर एक होर कंपैरिजन करते हैं। मान लो मेरे कोले इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है, हुण ध्यान नाल देखो, दशमलव तो पहला 5 है, दशमलव तो पहला 5 है, ठीक है जी, दोनों सेम ने। दशमलव तो बाद इत्थे 1 है, दशमलव तो बाद इत्थे 1 है, ठीक है जी, दोनों सेम है। पर 1 तो बाद साडे कोले इत्थे तो 0 है और इत्थे 4 है, तो ओबवियसली वड्डा किहड़ा होया, ये वड्डा होया, ठीक है। तो स्टूडेंट तुहानूं ये तक गल क्लीयर हो गई होनी है कि अगर असीं दो संख्यावां दे विच कंपैरिजन करना है और अगर दोनों संख्यावां प्लस वालियां ने, ठीक है, तो उन्हां दे विचों असीं वड्डी किवें चैक करना है, ठीक है। पहला दशमलव तो पहला वाला देखना है, उस तो बाद दशमलव तो बाद वाला देखना है। हुण मैं इत्थे एक चीज़ होर तुहानूं दसदा, फॉर एग्जाम्पल साडे कोले आ रकम लिखी हुई है, हुण देखो इहदे विच देखदे हां, दशमलव तो पहला सेम, ठीक है जी, दशमलव तो बाद वाला भी सेम है 1 अंक, ठीक है जी। पर इत्थे तो 0 है, इत्थे की है 8 है, तो ओबवियसली वड्डी किहड़ी है, आ वाली संख्या आ गई। तो इस तरीके नाल आपां ने इसनूं जमा ध्यान दे विच रखना है कि जो भी आपां कंपैरिजन कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई स्टूडेंट नूं नहीं भी आंदा, तो उदों आपां ने जरूर देखना है कि किवें असीं, मैं तुहानूं दसदा ते किवें चैक करना है। तो स्टूडेंट अगे मैं तुहानूं दसदा कि अगर आपां ने इन्हां दा सम करना होवे, सम या सबट्रैक्शन करनी होवे, क्योंकि ये साडे कोले लास्ट टॉपिक ही रह गया इसका, ठीक है। अगर आपां ने दशमलव का सम करना है
ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुसी पहला ऐ लिख लो इसनों 2.2, ठीक है जी। तो याद रखियो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है 3.16 3.16। हुण इत्थे तुसी देखोगे जो इन्हां दा सम करना है, देखो पॉइंट तो बाद 16 है, पॉइंट तो बाद ओनली 2 है, और आपां ने हुणी रीड करके हटे हाँ कि अगर दशमलव तो बाद जो भी अंक रह जाता है लास्ट उसके अगर आप सज्जे पासे जीरोस भी पा दिए तो भी कोई फर्क नहीं पैंदा। लो जी आपको जोड़ना बड़ा आसान है, 0 च 6 जोड़े 6, 2 च 1 जोड़े 3, फिर असी पॉइंट लगा लिया, 3 च 2 जोड़े 5, ठीक है। बड़ा ईजी थोनों लग्या होना। अगे मैं एक होर गल करदा, मान लो आपां इस तरीके नाल करते हैं, ਹੁਣ देखो मैं 3 रकमां दे विच जोड़ करना है, तो मैं पहला गल कह चुके हाँ। सब तो पहली गल है दशमलव दे विच दशमलव लिखना। मान लो मैं पहली रकम ही ए लिख ली 3.16, इस तो बाद देखो पॉइंट के नीचे मैं पॉइंट लिख लिया, ठीक है जी। पॉइंट तो बाद 376 है, 376 अगे लिखूँगा मैं 12, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। इस तो बाद फिर मैं दशमलव पा लिया, दशमलव आप है 3421, 3421, और दशमलव तो पहला साढ़े कोले 151, इस तरीके नाल। तो इसनों आपां सम करते हैं। तो एक मैं थोनों ये भी गल कह चुकिया सी कि अगर साढ़े कोले एक पूर्ण अंक है, यानी कि पूरा अंक है, देखो दशमलव तो पहला आना, तो अगर उसके आपां खब्बे पासे जीरोस भी पा दिए तो भी कोई फर्क नहीं पैंदा, देखो है ना। सम करना कितना आसान हो जाता है। और एक अपने चीज़ ये भी कही सी कि अगर दशमलव तो बाद सब तो लास्ट वाले जो अंक है उसके सज्जे पासे अगर तुसी जीरोस भी पाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। तो इसनों अगे तुसी सम कर सकते हो 1 8, ठीक है, 7 जोड़ रहा मैं, 7 4 11 6 17 बच गया 1, 3 3 6 7 1 8 आ गया, पॉइंट आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 1 आ गया। यानी कि असी इस तरीके नाल इन्हां दा सम कर सकते हैं। और अगर आपां ने हुण देखो सबट्रैक्शन करना होवे, फॉर एग्जाम्पल 4.47 दे विचों मान लो 3.2 कढ़ना होवे, मैं सबट्रैक्शन की गल कर रहा, तो सबट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है 4.47, ठीक है जी। दशमलव के नीचे दशमलव लिखनी है, इत्थे आ गया अपने को 2, सॉरी इत्थे 2 आएगा और इत्थे आएगा 3। मैं सही तरीके नाल लिख लेना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। हुण आपां सबट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखो मैं फिर वही गल होंदी है कि दशमलव तो सज्जे पासे अगर उसके जो अंक खत्म होंदा है, ठीक है, उसके सज्जे पासे भी अगर आप जीरोस पाने कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण घटाना आसान है, 7 चों 0 गए 7, 4 दे विचों देखो 2 गए 2, दशमलव सेम रहा, तो 4 दे विचों 3 गए 1, यानी कि इस तरीके नाल देखो आपां घटा सकते हैं। तो तुसी मेरी देखो गल बिल्कुल क्लीयर कर गए होंगे, है ना। तो अगर आपां ने एक एग्जाम्पल होर ले लीए, मान लो, ठीक है, इस तरीके नाल अगर आपां एक एग्जाम्पल आ लैके चलने ने कि इन्हां दोनों दे विच सबट्रैक्शन किवें करनी है, तो फिर मैं वही संख्या उवें लिखी, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव लिख रहे हैं और इस दे मैं सज्जे पासे जीरोस पाता, ठीक है जी। इस तरीके नाल पा के देखो 2 चों 0 गए 2, 0 चों 8 नहीं जा सकते, कैरी करते हैं, ये 10 बन जाता, 10 चों 8 गए अपने को 2, ठीक है। तो इत्थे साढ़े कोले फिर की बन गया जी, फिर 0 बन गया, यानी कि इत्थे कितना रह गया साढ़े कोले 5, तो इत्थे पॉइंट ला के 0, ठीक है। तो इस तरीके नाल देखो तुसी गल बिल्कुल ही क्लीयर हो गई होनी है ना, किमें किस तरीके नाल किद्दां करना हैगा। तो तुसी इसे तरीके नाल स्टूडेंट हुण डेसीमल के संबंध दे विच भावें तुहानूं उन्हां दा सम आवे, प्रोडक्ट वो चलो अगे की गल है ना। सबट्रैक्शन ये तुसी हुण सीख चुके हो, डेसीमल बारे बहुत ही डिटेल दे विच मैं 3 वीडियोस लेके आया। तो स्टूडेंट हुण तुसी देखो मैं तुहानूं इन्नी चीज़ सिखाई है ना, तुसी इस वीडियोस नूं जरूर लाइक करना, शेयर करना, जरूर तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। तो एक ना मैं डिस्क्रिप्शन दे विच देखो टैलीग्राम का भी लिंक दिता होया, तुसी टैलीग्राम चैनल नूं भी जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उत्थे हुण मैं एक चीज़ होर की कर रहा हैगा, क्योंकि ये संभव नहीं होंदा कि मैं वीडियो दे विच हरेक प्रकार की एडवरटाइज भी मैं तुहानूं दस सकां। कोई भी जॉब्स वगैरह आंदियां ने, ठीक है। तो तुसी
ਆਪਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਪੋਸਟ ਆਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾफ़ੀ ਜੌਬਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਜੌਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂੰਗਾ, ਉਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਅੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ 8ਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਵੋਦਿਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਥੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਈਅਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9th ਜਾਂ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਨਰੋਲ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੈਨਸਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈਨਸਡੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਫੈਕਟ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ।